Assalamu alaikum, Maha. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you for having me, Umair. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking out your time. A lot of people don't have care having these sessions to get as much knowledge from industry professionals, and the overall idea is started from LinkedIn. So it's basically to understand care hiring, फायरिंग, एचआर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एचआर से ही पूछ लिया जाए क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक यार एम्प्लॉयर्स अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हायर कर रहे होते हैं। एचआर रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के बट हमें ये ज़रूर समझना चाहिए इट्स नॉट ओनली अबाउट वन साइड ऑफ अ स्टोरी। हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि यार बीइंग एज़ एन एचआर इंसान क्या-क्या चीज़ें देख रहा होता है। सो we'll be discussing very good pointers on this call, but just for the start, if you can tell me about yourself and then we'll see how the conversation goes. Perfect. Thank you, Umair. And thank you so much first for having me. And I'm glad that, you are making an awareness regarding that because there are very few people who are making these things, but I'm glad you did. And so starting from my introduction, my name is Maha. I am based in Pakistan and I'm working as a global technical recruiter right now. So how do I start? And what I do and how it looks like. So, as a brief intro about me, so I started as an intern in HR, which I don't know what was the HR at that time. I just started randomly and applying and I got into then I got to know that HR has two aspects like operations and talent acquisition. So when I started the talent acquisition thing, so currently I'm working in a company named as Boss, that is back office support shop, and that's international company. We don't have any, my founder, my boss is based in Canada and US, so they are totally international company. I started their PK office. They have an offshore office in Karachi. So first I started as a local market where I started as in like Pakistan hiring within the junior hirings and all these stuff. Then gradually, it's been like more than 3.5 years now. I lead their technical recruitment, like talent acquisition department with my own team, and I do their international hiring. So, as I mentioned, that I started HR with, with no knowledge, but then I gained experience and then I put my 100% when it feels, after a few years, I realized this is something that I love doing. I love to interact with people. I love to know their journey. I'm like, HR way of, hiring is something that they need to make a decision. Like this person can be a good fit for that before take like moving forward with that person going to the hiring manager or the decision makers leadership side, right? So I started my journey as an intern. As I mentioned, I was doing my bachelor's at that time, and then meanwhile I can't and then I got an opportunity for a job. So I thought like it's a good thing, and वो CST में थी क्योंकि कंपनी यूएस बेस्ड थी, तो वो उन्होंने मुझे ऑफर जो है अपने यूएस टाइम जोन पे ही की. So I thought let's start and like maybe बहुत अच्छा रहेगा ये वो. It was hard in terms of obviously managing studying and job and everything, a full-time job especially, but I give my 100% and alhamdulillah, so far I'm doing, I've learned so far and I think that was the best decision to gain experience while studying. I know it's hard, but you always once you graduate, आपकी expectation होती है market में कि मुझे कोई भी बंदा hire करे तो मेरी ये salary expectation है या मेरी skills expectation है. हमारी market में बगैर skills के there is nothing, जो I think so कोई कंपनी क्योंकि कंपनी का पर्सपेक्टिव यही होता है आप काम करके दोगे तो आपको पूछेगी वरना फिर उनका कोई काम नहीं है आपसे, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि वो आपको एक लाइक एक पर्सनल उसमें वो आपको सिर्फ़ आपकी स्किल्स पे ही हायर करती है। आप काम करोगे तो वो आपको रखेगी अदरवाइज़ दे यूजुअली लाइक दिस। सो आई स्टार्टेड लाइक दिस एंड नाउ आई एम अ ग्लोबल रिक्रूटर। आई डोंट डू मच ऑफ पाकिस्तान लोकल हायरिंग नाउ बिकॉज़ आई हैव अ टीम फॉर दैट बट मैं उनको डे टू डे गाइड करती हूँ। आई मेक डिसीजंस, आई मेक लाइक मैं फेस टू फेस इंटरव्यूज़ फाइनल राउंड्स जो है मैं लेती हूँ एंड देन राइट नाउ माय टोटल फोकस इज़ इंटरनेशनल मार्केट जिसमें यूएस होता है। आई हैव वर्क्ड इन अ लॉट लाइक मोर देन 50 प्लस टेक्निकल राउंड क्लोज़ किए हैं मैंने, एक्सटर्नल क्लाइंट्स के भी, इंटरनल भी। टेक्निकल ज़्यादातर नॉन टेक्निकल भी यूएस मार्केट, कैनेडियन हो गया आपका, यूरोपियन मार्केट भी रिसेंटली मैंने 2 रोल क्लोज़ किए हैं। उसके अलावा आई स्टार्टेड एज़ अ फिलिपींस मार्केट जो भी ऑल ओवर चल रहा होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो मैं करती हूँ। अच्छा, सो दिस इज़ अ बिट अबाउट मी एंड असाइड ऑफ दिस ऑपरेशंस में भी मेरी एक्सपर्टीज़ है। आई एम अ डिसीजन मेकर इन टर्म्स ऑफ पेरोल, स्टाफ एंड ऑपरेशंस इन पीके ऑफिस। सो एंड
what my company do is, this is an IT based company. So technical recruiters always, we will be going to talk about how the IT industry is looking towards the candidates. Fair Because enough. हर दूसरे बंदे को आजकल आईटी में इंटरेस्ट है, बिकॉज इट्स अ फास्ट ग्रोइंग थिंग। और जब से एआई आया है, सो आईटी कंपनीज ही एआई पे इन्वॉल्व हो रही हैं, एंड क्योंकि उनकी टूल्स वगैरह और उन्हीं उन्हीं के बेसिस में। Yeah, सो it's a money market. I think nothing to hide. Yes, IT is a very good thing. IT is booming because it's a service industry, and you make a product and you get service for a couple of years, and then it's not about building every time. Okay, it's about building something and try to make it work as perfectly for their individual clients. Um, uh, Thank you so much for completing the dream. I really wanted to ask this क्या tell me about yourself. अब मैं एचआर से सुना है तो मुझे बड़ा मजा आया, but thank you so much Ma. Yeah, you have been doing multiple things. So starting off, the thing that I wanted to start is we'll be discussing the employee part, but as an employer part, ठीक है, you are hiring for, like, you have gone through multiple CVs. आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या सही ठीक नहीं है। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे स्टार्टिंग में ये बताओ कि व्हाट शुड बी लाइक द 3 प्लस पॉइंट्स इन अ प्रोफाइल जो आप देखने के बाद सोचते हो कि ठीक है, इस सीवी पे मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अप्लाइंग फॉर ईज़ी अप्लाई या कहीं पे भी सीवी दे देने का मकसद ये है कि बस ठीक है, अब मैंने सीवी दे दी है, नाउ एचआर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, कितना भी एआई आ जाए, देयर इज़ अ ह्यूमन। पीपल आर हायरिंग पीपल, ठीक है? राइट। दिस इज़ व्हाट माय एजेंडा, ठीक है? अगर कोई एआई भी यूज़ कर रहा होगा तो वो कहीं न कहीं एक सर्टेन टाइम पर आके आपको ह्यूमन इंटरेक्शन देखना पड़ेगा। वो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, सेकंड हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवेंथ हो, कोई भी हो, ठीक है? स्टार्टिंग ऑफ मुझे ये बताओ कि क्या 3 चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वहाँ को ऐसा लगता है कि यार दिस सीवी इज़ हैज़ द पोटेंशियल ऑफ गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और इन द नेगेटिव डायरेक्शन? Perfect. Yeah, thank you, Umair, for raising that easy apply वाली चीज़, because that's something very important और लोगों को नहीं पता होता कि वो जस्ट अप्लाई करें, आगे का प्रोसीजर क्या होता है एग्जैक्टली, हाउ इट लुक्स लाइक व्यूइंग एज अ रिक्रूटर और हायरिंग पर्सन फॉर दैट रोल। सो जनरल तौर पे कोई भी पोजीशन होती है, सो एक जस्ट अवेयरनेस, आई एम नॉट लाइक अवेयर कि लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग एटीएस नाउ, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स, जो कि रिक्रूटर्स का काम आसान करती है। ईज़ी अप्लाई से जब भी कोई बंदा अप्लाई करता है, सो दे मस्ट आस्क फॉर फ्यू क्वेश्चंस, राइट? अब लिंक्डइन पे वो आता है कि आप एक दफ़ा जब अप्लाई करते हो, आपने उसका जवाब दिया, वो आपके वो जवाब सेव कर लेता है और व्हेनेवर यू क्लिक ऑन ईज़ी अप्लाई, वो आपको वही चीज़ें दे देता है। बट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट एक क्लिक से जॉब अप्लाई नहीं होता, देयर मस्ट बी सम स्क्रीनिंग क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज़ योर सीवी, वो तो आपकी सबसे पहली चीज़ है। उसमें आप लाइक आपने एक जॉब पोस्ट खोली है, आप पहले ये देखो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हुँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तान मार्केट में ये बहुत बड़ा मसला है। दे लोग लोग जस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक हमने यार 20 पोज़ीशंस पे अप्लाई कर दिया, अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं आया। बट एटलीस्ट आप क्वालिटी ये देखो कि मैं जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, इज़ इट रेलेवेंट टू माय फील्ड? इज़ इट हाउ इट लुक्स लाइक? राइट? सो ईज़ी अप्लाई एटीएस यूज़ करते हैं। एटीएस में ये होता है, जब भी आप ईज़ी अप्लाई पे क्लिक करते हो, हमारे पास सीवी आती है, उस स्क्रीनिंग क्वेश्चंस हम एक सेट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ रिज्यूमे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड फाइल में रिज्यूमे नहीं रखनी चाहिए आपको, दैट्स माय ओपिनियन, बिकॉज एटीएस रिजेक्ट कर देता है। सही है। सो तो एटीएस रिजेक्ट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई वर्ड फाइल में सीवी नहीं रखनी। पीडीएफ इज द बेस्ट वे टू लाइक अपनी सीवी की फाइल पीडीएफ में रखें। सबसे सही पहले है। वो एडिटेबल नहीं होती, कोई उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता और किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो उसको कन्वर्ट करके चेंजेस करे, राइट? सही है। सो वर्ड फाइल में लोग जब अप्लाई करते हैं तो एटीएस, मेजॉरिटी ऑफ एटीएस, आई कैन गिव सम एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस, बैम्बो एचआर एंड जैज एचआर, ये तीन मैंने यूज़ किए हैं और तीनों का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैज एचआर मोस्टली वर्ड फॉर्मेट सपोर्ट ही नहीं करता, वो रिजेक्ट चला हुँ। जाएगा आपका, क्योंकि फिल्टर्स आते हैं, एआई जो हेल्प करता है वो फिल्टर करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन से आपकी सीवी को मैच करके फिल्टर करता है। अगर वो पहली चीज़ अगर वर्ड में होती है वो रिजेक्ट कर देता है आपका, और हमारे पास वो नॉट अवेलेबल या नॉट सपोर्टेड करके आ जाती है। सेकंड इज स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पे वी मस्ट आस्क फॉर लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं रेलेवेंट टू जो हमें
जिन बेसिस पे हम सीवीज़ को आगे लेके जाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? वो देख के आंसर करने होते हैं बिकॉज़ दैट रिक्वायर्स योर इंटेंशन और समझे उन क्वेश्चंस को एग्ज़ैक्टली है क्या, पूछ क्या रहे हैं, उसमें जनरल आपका एक्सपीरियंस वाइज़ भी होते हैं और उसमें आपकी कभी-कभी प्रोफाइल्स या पोर्टफोलियो भी चाहिए होता है, ठीक है? आई नो पोर्टफोलियो मेंटेन करना एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है Just just और a common just a common thing. This is what I see. मैं जानना चाहूँगा ये सही है या नहीं? Sometime we see क्वेश्चंस जिसमें येस और नो होता है, ठीक है? आई पर्सनली बिलीव कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है कि उनको इंग्लिश चाहिए, अगर आप नो रिप्लाई करते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो आपको खुद ही रिजेक्ट कर देगा ऑटो रिजेक्ट पे। क्योंकि उसके परहैप्स कोई ना कोई बैकहैंड पे आंसर्स भी होंगे जिसकी वजह से आप सॉर्ट करते होंगे। व्हाट आई पर्सनली मैं एज़ अ लेमैन जानना चाहता हूँ कि व्हेन वी गो ऑन ईज़ी अप्लाई, ठीक है? वी डू ईज़ी अप्लाई एंड देयर लाइक 5 क्वेश्चन्स जिसमें आपका नाम है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपको वो चीज़ें पुट करनी चाहिए जो कि अपैरेंटली एक एचआर चाहता है। आपको पॉज़िटिव में रहने के लिए वो चीज़ें ही डालनी पड़ेंगी। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जस्ट एग्ज़ाम्पल 1 लाख पीकेआर की और आप लिखते हैं 2 लाख पीकेआर, तो आई थिंक यू विल बी रिजेक्टेड ऑटोमैटिकली क्योंकि आप उसकी एक ब्रैकेट से ऊपर जाते हैं या बैकएंड पे अलग तरीके से ये किस तरीके से होता है? मतलब आप कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें वो चीज़ लिखनी चाहिए जो एचआर सुनना चाहता है, फिर हम फर्स्ट राउंड में उसको बता देंगे क्या-क्या चीज़ें थी या क्या चीज़ें नहीं थी। हाउ इट वर्क्स। अच्छा Just a just a small thing. You're using your MacBook, right? यस आप टॉप राइट पे देखो, देयर इज़ अ आइकन इन दिस स्क्रीन के साथ एक छोटा-सा आइकन बना होगा, वहाँ पे जाके अपनी सेंटर स्टेजिंग बंद कर दो क्योंकि आपका सेंटर स्टेज ओह की वजह से वो हिल रहा है। आई डोंट रियलाइज़ दैट ओके वेट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यू गो ऑन द टॉप मेन्यू, ठीक है? यू हैव सीन कि वहाँ पे एक स्क्रीन बनी हुई होगी और उस स्क्रीन के साथ एक बंदा बना हुआ होगा। आप वहाँ पे जाएँगे तो यू कैन उसके अंदर एक ऑप्शन होगा सेंटर स्टेजिंग का, वो ऑन होगा। यू कैन रिमूव दैट। I don't see minimize Just give me a second. Let me share. framing. Yep, I got it. Got it? Yeah, Perfect. sounds So, nice. Okay, sorry about that. I was not aware of this. no Okay. problem, no problem. So the point what I was discussing is कि yes, we have few questions जब कभी भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं। एज़ अ लेमैन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको वो उस तरीके से भरनी चाहिए जिस तरीके से एचआर सुनना चाहता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पे कुछ सवाल येस और नो में है, ठीक है? और आपको पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट येस में होनी चाहिए, बेशक आपके पास नो हो। क्योंकि अगर आप नो भरेंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप वैसे भी एलिमिनेट हो जाएँगे। तो वो सही भरने चाहिए या वो भरने चाहिए जो एचआर ढूँढना चाहता है? ये चीज़ मैं बिल्कुल समझ गई। लेकिन देखें, जो ये सैलरी एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ आपने बोली है एंड द सेकंड इज़ द लैंग्वेज because English is very important when it comes to client facing हुँ, role या internally भी, हुँ। ठीक है? सो दिस इज़ येस नो वाले आंसर में मैं ये क्वेश्चंस कभी येस नो में डालती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी नज़र में इस पे येस और नो का आंसर नहीं बनता, इट्स ओपन। आई ऑलवेज़ आस्क लाइक व्हाट लैंग्वेज यू आर फ्लुएंट इन? इफ समवन सेज इंग्लिश एंड उर्दू और ऑब्वियसली जो भी उनकी लैंग्वेज है, मल्टीपल लैंग्वेज दे कैन राइट इट डाउन देयर आंसर ओपनली। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर किसी ने इंग्लिश नहीं लिखी बिकॉज़ दैट्स मेन रिक्वायरमेंट फॉर अस तो मैं उसको नहीं मतलब आगे नहीं लेके जाऊँगी, सही? स अनदर थिंग अबाउट द सैलरी, यूजुअली सैलरीज़ जेडी में मेंशन होती हैं, अगर नहीं मेंशन है, सो ये क्वेश्चन भी ब्रैकेट वाइज़ अगर उन्होंने दी हुई है चॉइस कि इतने से इतने, सो कि वो एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने लिखी हुई है, उनका बजट इतना ही है। बहुत कोई एक्सेप्शनल केस होता है, कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट आ गया और लीडरशिप को पसंद आ गया, वो उससे भी ऊपर जाके बोलेंगे, "भई, इस बंदे को ले आओ, अच्छा है।" बहुत रेयर केसेस होता है। बट मैं ये क्वेश्चंस ओपन उसमें डालती हूँ कि जस्ट टू सी कि सामने वाले बंदे की एक्सपेक्टेशन क्या है एंड देन कंपेयर देयर एक्सपेक्टेशन व्हाइल डूइंग द स्क्रीनिंग। क्योंकि कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता कि उन्होंने अप्लाई करते हुए क्या सैलरी रखी थी और जब उनको स्क्रीनिंग करो उनसे पूछो तो वो टोटली डिफरेंट आंसर बताते हैं। दैट्स समथिंग क्योंकि वो बैक ट्रैकिंग नहीं कर रहे होते। दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक इश्यू दैट आई यूजुअली सी कि जो अभी आपने कहा था ना कि अगर आप 20 जगह अप्लाई कर रहे हैं, आप 20 जगह अगर अप्लाई कर रहे हैं और आप जाके ईज़ी अप्लाई पे क्लिक करके रैंडमली चीज़ें डाल रहे हैं, फिर होता ये है कि जब आपको वहाँ से कॉल आ जाती है
एंड यू आर ब्लैंक, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने एक जगह 1 लाख डाली थी, एक जगह 1,10,000 डाली थी, एक जगह 1,20,000 डाली थी, एक जगह 90,000 डाली थी, एंड यू गॉट दैट थिंग। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये जो मेन इश्यू है वो ये है कि लोगों को बैक ट्रैक, अपना भी बैक ट्रैक करना चाहिए कि अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक डाटा लिखा हुआ हो कि ठीक है भाई, आई एम अप्लाइंग जहाँ की एचआर महा है, वहाँ पे मैंने सीवी इतनी लिखी है, जो बेसिक सवाल होने चाहिए जस्ट इन केस। क्योंकि वही आपकी वाली बात है कि अगर आप 100 जगह अप्लाई कर रहे हैं और 100 जगह अननेसेसरी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 100 के आप तो 1000 जगह भी सिलेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल। दैट गोज़ टू अनदर पॉइंट। महा, मुझे ये बताओ कि ठीक है, आपने ये चीज़ कर ली। अ, आपका जो पहला, आई थिंक 99% प्रेज़ेंस होता है बंदे का, बहुत ही कम चांसेस हैं आफ्टर कोरोना कि आप इन हाउस इंटरव्यू दे रहे होते हैं। मतलब आपको कोई बोले कि आप आ जाएँ, सही है। क्योंकि उसमें 2 नुकसान है ना, एक तो अगर वो बुलाएँगे तो टाइम ज़ाया होगा, फिर स्केड्यूल करो, फिर वो बंदा अवेलेबल है या नहीं है जो इंटरव्यू हुई है। आपको क्या लगता है कि यार, एक इंसान के पास क्या-क्या वो चीज़ें जिसकी वजह से वो हुक स्टेप बनता है एक एचआर के लिए? लिंक्डइन पर, या क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट हायरिंग अ पर्सन, ठीक है? इट्स नॉट ओनली अबाउट हायरिंग अ इंजीनियर, इट्स नॉट ओनली अबाउट हायरिंग अ क्रिएटिव डिज़ाइनर, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो बंदा प्रॉपर फिट है या नहीं है? क्या वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से जाता है, नहीं जाता? Um, what I personally believe, you don't get rejected. Sometimes you get rejected, you are overqualified. Sometimes you rejected because you are not capable enough for that specific role. हो सकता है कि जो कंपनी है वहाँ पे सारे मिलीनियल्स या उनसे ज़्यादा एज के लोग हैं, तो इसलिए वो चाहेंगे कि यार उसी तरीके के एनवायरनमेंट का बंदा हो ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट कर सके। आपको क्या लगता है वर्चुअल प्रेजेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? उसमें क्या-क्या लगता है कि इन चीज़ों का होना इज़ अ गुड पॉइंट, इज़ अ ग्रीन फ्लैग, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इट्स अ रेड फ्लैग? I got it. So, in terms of virtual existence, obviously it comes to LinkedIn, right? CV के LinkedIn presence बहुत important है. बहुत it's just not about posting a random post daily basis पे just for chat GPT so that I can no, it's not about that. It's about how you present yourself in a right way. एक जो अबाउट वाला सेक्शन होता है ना वो कोई नहीं पढ़ता, दैट्स अ रियलिटी, कोई भी नहीं पढ़ रहा होता। बट व्हेनेवर आई लाइक एनी सीवी, आई द फर्स्ट थिंग आई डू इज टू ओपन देयर लिंक्डइन जस्ट टू सी कि उन्होंने अपनी लिंक्डइन में क्या एक प्रेजेंस दी हुई है, बिकॉज मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर थिंग दैट यू मेंशन अबाउट द कल्चर फिट, उसको हम कल्चर फिट में ले जाते हैं, तो मिलेनियन वाली आपने बात की है, बिकॉज़ कल्चर फिट रिसोर्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको काम जितना भी अच्छा आता हो, कल्चर फिट नहीं होता तो लोग नहीं जाते। अच्छा, थर्ड थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशन अबाउट इज़ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ जो कोविड के बाद से चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ जो है, इवन माय कंपनी इज़ टेकिंग इंटरव्यूज़ ऑनलाइन। फर्स्ट इंटरव्यू विल बी ऑनलाइन। वो आपका टाइम भी बचाती है, दूसरे बंदे का ऑब्वियसली बात है, टाइम भी बचाती है, ट्रैफिक्स ये सब चीज़ें भी बचाती है। आपने जस्ट अपने एक वीडियो प्रेजेंटेबल वे में बैठ के एक वीडियो पे इंटरव्यू देना है, एंड देन इफ यू गेट सिलेक्टेड देन वी डू द सेकंड राउंड ऑन साइट फेस टू फेस जस्ट टू सी कि उस बंदे, बिकॉज इट मैटर्स द अपीयरेंस इन थिंग्स, इन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फैंसी अपीयरेंस बट हाउ यू लाइक प्रेजेंट योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ना सामने वाले बंदे का प्रेफरेंस उसी के हिसाब से बनता है। अगर कोई सेल्स का बंदा आ रहा होगा तो मेरी प्रेजेंस उसकी सेल्स की बंदे की लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई सेल्स का बंदा है, आउटरीच करता है तो उसके पास कितने कनेक्शन है, कितने फॉलोअर्स है, दैट्स इंपॉर्टेंट वाला। अगर आप डेवलपर हो, इट डजेंट मैटर फॉर यू, आपके पास फॉलोअर्स हैं नहीं है, इट डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव सम अपीयरेंस। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं इंडीड, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, एटीएस इज बेसिकली वो लिंक्डइन और इंडीड दोनों के जो एप्लीकेशन होती है मर्ज करके आपको देती है किसी भी प्लेटफॉर्म के। तो इंडीड पे ज़्यादातर लोगों की मैंने एक चीज़ नोट की, जब वो अप्लाई करते हैं ना वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक नहीं डालते क्योंकि एक ही पेज पे आता है, तो लिंक्डइन ऐड करने के लिए उनको वो पेज हटाना पड़ता है। तो वो लेज़ीनेस में वो हटा के नॉट अवेलेबल कर देता है। स्ट्रेट रिजेक्ट हो जाती है सीवी, क्योंकि आपकी अगर लिंक्डइन प्रेजेंस ही हमें नहीं मिल रही, क्योंकि हम मैनुअली तो नहीं देख सकते ना कि सर्च करके कि वो बंदा क्या है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू बी मेक नॉट जस्ट इन लाइक डेली बेसिस पे जस्ट अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, ट्राई टू make connections with relevant people in the market or just to follow them and see how it working.
कभी-कभी रैंडम अप्लाई करने से भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, रैंडम कुछ देखने से भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। सो लिंक्डइन अपीयरेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं सबको ये चीज़ बोलती हूँ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सीवी के साथ-साथ देखिए, दूसरी चीज़ सीवी के हवाले से मैं ये भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ओवर कमिटमेंट्स या अपनी सीवी को ज़्यादा फैंसी बनाने के लिए वो चीज़ें ना लिखें जो आपको पता भी ना हो। बिकॉज़ वो एक रेड फ्लैग हो जाता है फिर। जब आप उसको स्क्रीनिंग करते हैं ना हम, तो उसमें हमें क्लियर आइडिया हो जाता है कि इसने जो लिखा है ये कर सकता ही नहीं। तो अपनी सीवी को जितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रखेंगे उतना ही बेहतर होता है। सो लिंक्ड सीवी, लिंक्डइन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके प्रेज़ेंस के हिसाब से। कभी-कभी कुछ लोगों की लिंक सीवी के बाद जो फर्स्ट लुक आपको लिंक्डइन के अपीयरेंस पे भी आप हायर हो जाते हो, यू नो? So it's very important. Second, the online interview thing is something very common in Pakistan now, but most of the companies कर रही हैं ये चीज़। हम सेकंड राउंड या ऑन साइट ऑफर साइनिंग हो गई, वो हम लाइक पैकेज साइनिंग इस तरह हो गए। जो रिमोट एम्प्लॉयज़ उनके लिए तो ऑब्वियसली सब चीज़ें रिमोट ही होती हैं, बट जो ऑन साइट होता है उनके लिए ये प्रेफ़रेंस होती है कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन हो जाए, फिर उसके बाद हम वो दे देंगे। सेकंड, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। मेरे पास अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन क्योंकि हमारे पास दिन में अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो 1000 सीवीज़ आती हैं, 1000 लोगों के नाम तो याद नहीं रहते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि जो हायरिंग मैनेजर है उसको अगर आप लिंक्डइन पे एक मैसेज ड्रॉप करते हो विद योर सीवी के अप्लाई, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। रैंडमली कभी क मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया, वो मैंने ऐसे ही हायर किया। मेरे पास 1000 सीवी से आई वाज़ अबाउट टू ओपन दैट जॉब पोस्ट कि मैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करूँगी। मैंने लिंक्डइन खोला, उस बंदी ने अप्लाई किया। आई सॉ द सीवी, आई वाज़ लाइक मैंने सबसे पहले सब छोड़ के उसको रीच आउट किया। तो यू नो दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपकी कभी-कभी बहुत काम आ जाती हैं एंड मेक यू स्मार्ट। या ईमेल उनकी होती है, पर्सनल ईमेल नहीं, ऑफ़िशियल जो उनकी ईमेल होती है, जो हम जॉब पोस्ट के साथ डालते हैं कि प्लीज़ अप्लाई ऑन दिस एंड दैट। अब उसपे और अब एक चीज़ बहुत ट्रेंड में है, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में किस तरीके से चल रहा है, बट दैट्स मैं तो ये चीज़ अब प्रोसेस का पार्ट बना चुकी हूँ। अपनी एक लूम, यू नो व्हाट इज़ लूम राइट? एक शॉर्ट वीडियो आप अपनी रिकॉर्ड करके रखें जनरल जनरल वे में, व्हाट्स योर एक्सपर्टीज़ आर। आप हमेशा जॉब अप्लाई अगर कोई जॉब आपको बहुत अच्छी लगे एंड यू वांट कि मुझे ये चीज़ मिले या जो भी है रैंडमली अप्लाई करने से, तो आप अपनी लूम वीडियो भेजें, वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है। आपको स्क्रीनिंग हर चीज़ से पता चल जाता है कैंडिडेट कैसा है, और मैंने इस तरह करके काफ़ी पोज़ीशंस क्लोज़ किए हैं कि जस्ट उनकी लूम वीडियो आती है, सीवीज़ आती हैं, लूम वीडियो देखी कि हाँ, ये बंदा है, इसकी कम्युनिकेशन है, इसकी स्किल्स हैं, व्हाट दे आर लाइक टॉकिंग अबाउट इज़ समथिंग दे नो व्हाट दे वांट, right? So that's why these things makes huge difference when you start applying for these things. And quantity se zyada I would prefer in quality, especially when you're applying for a job. So as a employer and employer point of view, हर उससे point of view से बता रही हूँ, these things makes a huge difference for a recruiter and save their time as well. So आप extraordinary में आ जाते हो फिर bonus points, थोड़े bonus points कुछ candidates के होते हैं, सो वो वाली चीज़ है। और ये नॉट जस्ट ओवरऑल लोकल मार्केट, बट अगर कोई रिमोट पोजीशन है, इंटरनेशनल कंपनीज अब काफ़ी पाकिस्तान से टैलेंट हायर कर रही है। आई सी कि अब ये बहुत चीज़ कॉमन हो चुकी है कि डेवलपर्स हो गए और काफ़ी लोग जो है अब इस तरफ आ रहे हैं। दैट्स गुड। आई एम हैप्पी कि इस चीज़ पे सो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो मतलब आप अभी जो चीज़ें मैं समझा हूँ वो ये है कि अम, स्मार्टली देखनी चाहिए चीज़ें। इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट अप्लाइंग, इट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से देखना चाहिए। मैं इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि इफ यू रियली वांटेड टू हैव अ जॉब इन एनी एक्स वाई ज़ी इंडस्ट्री या एक्स वाई ज़ी जगह पे, इट विल टेक हार्डली लाइक 10-15 मिनट्स कि आप सबसे पहले उस जॉब ओपनिंग पे ये देखें कि उसका हायरिंग मैनेजर कौन है। उस कंपनी के बारे में थोड़ी-सी चीज़ें रिसर्च करें। गो ऑन देयर पोर्टल पेज, गो ऑन देयर करियर पेज, गो ऑन देयर वेबसाइट, रिसर्च अबाउट इट। गो टू द जेडी, जेडी को गो थ्रू करें। उस जेडी के अंदर कोई कीवर्ड्स हैं या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने करा हो और जो आपकी सीवी में ना हो, उसको एग्ज़ीक्यूट करें अपनी सीवी के अंदर। सीवी अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ वहीं पे अप्लाई करें। अगर उन्होंने कोई ईमेल दिया वहाँ पे अप्लाई करें, करियर पेज पे वो चीज़ है वहाँ पे अप्लाई करें। अगर उस बंदे को आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, राइट अ प्रॉपर मैसेज, हाय मा, आई एम दिस दिस दिस, आई गो थ्रू योर जॉब ओपनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट।
आई थिंक उसमें उसमें ज़रूरी भी नहीं होता आप चैट जीपीटी पे जाएँ और चैट जीपीटी पे टूटी-फूटी इंग्लिश में भी लिखेंगे तो शायद वो भी आपको सही कर सकता है। यस, अब तो इतनी सारी आसानियाँ हो गई हैं। मतलब इट्स मोर लाइकली व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इन एशिया स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान पीपल इट्स मोर लाइकली पीपल आर लाइक बेगर्स, ठीक है? सॉरी टू से दिस वर्ड, इट्स मोर लाइकली कि वो चाहते हैं कि बस उनको किसी तरीके से जॉब मिल जाए। दे रियली विदाउट एनी डोंट एफर्ट। बेयर मिनिमम एफर्ट इज़ लाइक वो अपनी ईमेल कर देंगे किसी को। ईमेल कर देंगे। समटाइम्स आई सी अम, लोगों ने सब्जेक्ट अपना कंटेंट सब्जेक्ट में लिखा हुआ होता है और वो पूरी ईमेल कर देते हैं। कभी-कभार मैं देख रहा होता हूँ कि फॉरवर्डेड ईमेल्स होती हैं। कभी-कभार मैं ये देख रहा होता हूँ कि अम they write something for some other another company, copy paste, and दैट्स you हू आई मिस। that you real and you realize to that thing क्योंकि um, people are hiring people। अब आप पाकिस्तान में आए रहो या आप कहीं पे भी आए रहो आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आप जहाँ पे आए आप जहाँ पे सीवी डाल रहे हैं वहाँ पे आप ही की मेंटालिटी के हज़ारों लोग सीवी डाल रहे हैं। आप ही की करियर में रहते हुए बहुत सारे लोग सीवी डाल रहे हैं। मेरा मेन पूछने का यही मकसद ये था कि चलो ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ये सोच रहे हैं। तो अपैरेंटली हम ही सही शायद सोच रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्योंकि जैसा अभी आपने बोला लूम वीडियो इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है? अगर लोग कोई ये कहता है कि यार मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, आई थिंक यू जस्ट गो ऑन चैटजीपीटी, अपलोड योर सीवी एंड राइट इट डाउन कि आई वांटेड टू रिकॉर्ड अ लूम वीडियो, आई वांटेड टू रिकॉर्ड अ वीडियो। या मुझे 4-5 चीज़ें बता दें और उसमें शायद मेन चीज़ यही होती है कि आपको वर्चुअली कॉन्फिडेंस पता चल जाता है बंदे का कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंटली बता रहा है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसमें ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जैसा आपने बिल्कुल, बताया। इट डज़न्ट मैटर, टू बी ऑनेस्ट इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल मैं बोलूँगी इट्स देयर इज़ नथिंग टू बी फैंसी। Yeah, you are right कि मतलब I personally believe it's quality over quantity। Applying for 1000 resumes इससे अच्छा ये है कि आप दिन में 4 जगह अप्लाई करें लेकिन अप्लाई तरीके से करें। क्योंकि अगर आप 100 जगह अप्लाई करते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर वहाँ से भी आपको रिजेक्शन ही आनी है इस तरीके से। तो 4 जगह अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि यार आपने पूरी तरीके से करी है। वन मोर एडवाइस इज़ कि यार अपने पास एक एक्सेल शीट मेंटेन करें। उस एक्सेल शीट में ये लिखेंगे मैंने कहाँ पे अप्लाई करा है, ताकि खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको अचानक से कॉल आ जाए तो आप घबरा के ना आप उस ईमेल को देख के देख सकें कि आपने क्या-क्या कितना कुछ बोला है। तो ये वाली चीज़ ही मैटर भी नहीं करती क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये बट अगर किसी को हम बोलें कि यू अप्लाई फॉर लाइक अम आपने अप्लाई किया था तो यूजुअली भूल जाते हैं, तो इट्स फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड वो उस चीज़ इस चीज़ को बट हाँ, ये चीज़ बहुत मैटर रखती है कि आपने जो चीज़ें ब क्योंकि देखिए आपके अंदर जो स्किल है वो आपको याद रहेंगे, कुछ भी हो वो आप भूलोगे नहीं, सही? सो आप कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हो तो जब आपसे पूछो तो कहते यू सेड नो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अराउंड इट। आई वाज़ लाइक सो आपने लिखा क्यों है? बिकॉज़ आई तो इट वेस्ट लाइक टाइम ज़ाया हो जाता है आपका इन शॉर्ट। सो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, इट्स नॉट ईज़ी टू मैनेज पीपल, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट ईज़ी इट्स टू इट लगता या आई टोटली एग्री विद द पॉइंट क्योंकि um if I'm not wrong, an HR is more likely to have like 30 to 40 seconds per candidate क्योंकि उनको जितनी रेज्यूमे आती है उनको उतनी रेज्यूमे देखनी है फिर उसको एग्जीक्यूट करना है देखना है उसमें चीज़ें हैं या नहीं है। तो यस, अगर आपको कहीं अप्लाई करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना 100% दें, ठीक है? उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपकी जॉब हो, बट अपैरेंटली अगर आप अपना 100% देंगे तो एटलीस्ट आप अपने आप से तो ये बोल सकते हैं कि मैं जहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से सही अप्लाई कर रहा हूँ। और एग्ज़ीक्यूशन फिर भी आपको ये भी पता चल जाता है कि ठीक है यार, मैं 1 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मुझे जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे अपने अंदर कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। रेदर दैन के अगर आप 100 जगह अप्लाई करेंगे तो फिर आप एग्ज़ीक्यूट ही आपको पता ही नहीं चलेगा। दैट गोज़ टू अनदर पॉइंट कि लोगों ने सीवीयाँ डाल दी, वो सेलेक्ट हो गया फर्स्ट राउंड में। इंटरव्यूज़ में बीइंग एज़ एन एचआर, ठीक है? आपको क्या लगता है ऑनलाइन इंटरव्यू में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप किसी बंदे के साथ बिठा दें, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैं उसको पूरा का पूरा 100% जो है उसको एग्री करूँगा कि वो मुझे हायर कर ले। क्योंकि जब आप सामने बैठे हुए होते हैं, तो बहुत आसान होता है। जब आप वर्चुअली होते हैं, तो बहुत सारे मसले होते हैं। एक तो आपको ये समझ में नहीं आता कि यार आपको उसको किस तरीके से बोलना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग मैटर्स। क्योंकि अगर आप किसी मैनेजरल पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप किसी सीनियर पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अ पर्सन
एक्सपेक्टिंग योर मैच्योरिटी एज़ वेल। वो ये सोच रहा होता है कि आपके जो जवाब होंगे, उसके अलावा जो आप किस तरीके से बैठे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड बी द राइट इंटरव्यू प्रेप्स और व्हाट शुड बी द राइट ग्रीन और रेड फ्लैग्स इन एन ऑनलाइन इंटरव्यू? Okay. Wait, I don't know why my camera is just, let me do it again. I don't know what's an issue it's happening. No worries, Because I take don't it. use Google Meet, I use Teams mostly. No problem, no problem. It looks better now. Just give me a second. Yeah, it's centered kar diya. Okay. Okay. You have to go in settings, Google Meet में, Yeah, और मैं go वो go in मैं media, then you एक एक सेकंड में इसका सेटिंग्स में जाके करते हैं एक सेकंड सेटिंग्स यस आ गई मेरे पास Is it fixed now? Yeah. Okay. S- Okay. So yes, can you please repeat the question? Just For remind me sure. first. For sure. So, what should be the right green flags or red flags in an interview? Hang on. Okay. So based on the interview prep, you can say do little company research, what the company do and वो क्या करती हैं, what makes you interested in this like in that whatever company is. For example, you're applying for any of your company like Plumtree में अगर मेरे पास कोई बंदा आता है तो I was like so like I was like okay tell me why you want to join us, right? So there must be a relevant, just like no, we just applied randomly, we got an I. There must be some goals because अगर नहीं भी होंगे so जो आपके साथ वाले कैंडिडेट जिनके पास कुछ goals होंगे ना they would be preferable for that. So it's very important to do some company research and then you know like presentable way में because it's very important. मैं आपको मतलब online interview में भी there must be on a video of like आपको जब ये वीडियो में बैठे हो सो एक प्रेजेंटेबल हो उसमें कैमरा अच्छा होना इट्स नॉट अ गोल बट यू शुड बी प्रिपेयर इनफ टू गिव एन इंटरव्यू राइट सो क्योंकि एक पूरी टीम आपके साथ आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठती है दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम सो दे ऑलवेज लाइक कि सामने वाला बंदा भी कुछ एफर्ट्स पुट इन करे सो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगेन इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स है बट दैट्स नॉट मैंडेटरी कुछ जैसे सेल्स में मैंने ये देखा है कुछ लोग क्या करते हैं पिच करना क्योंकि उनका काम ही यही होता है लोगों को पिच करना तो मेरे पास एक्सपीरियंस से बहुत रहा है कि कुछ लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस बनाई एंड दे स्टार्ट प्रेजेंटिंग इट कि प्लीज़ हमें 10 मिनट्स दें वी नीड टू प्रेजेंट इट वो इनका सेलिंग पॉइंट हमारी नज़र में बन के वी डिसाइड कि ओके लेट्स डू दैट राइट सो दीज थिंग्स मेक्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड लाइक but it's not something mandatory the basic things are company research right you must do some company like research कि वो करती क्या है उनकी इंडस्ट्री क्या है उनका काम क्या है एम्प्लॉयज का क्या है एंड देन आई वुड सजेस्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस एट द एंड कि व्हाट्स योर बिजनेस गोल्स बिकॉज कंपनी गोल्स होता है राइट अगर आप उन कंपनी गोल्स के बारे में जानोगे तो आपको आइडिया होगा कि वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ राइट कंपनी गोल्स में हर एम्प्लॉय आता है कि जितने एम्प्लॉयज बैठे हैं परमानेंट उनको हम कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे कंपनी की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सारी चीज़ों में होती है सो यू मस्ट आस्क सम क्वेश्चंस दैट लुक्स रियली लाइक प्रोफेशनल इन शॉर्ट कुछ लोग नहीं पूछते लाइक नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस बट वो ये उनको ये होता है बस उनको इससे फर्क नहीं पड़ा बस उनकी जॉब लग जाए बट मैं नहीं, नहीं, मतलब आप रोबोट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आपसे, ये भी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है जो भी आपने हाईलाइट करी, क्योंकि a lot of my friends who are in this HR field, and a lot of people that I met is like कि लोगों को ना करंट टाइम फ्रेम में कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर उनको जॉब चाहिए, करंटली चाहिए, वो ये नहीं पूछते कि भाई ठीक है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव, जॉब इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट। इट्स नॉट लाइक कि या अम लॉन्ग टर्म
ठीक है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वो तो फिर बाद में पता चलता है कि कंपनी कैसी है, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव, पीपल डूइंग ओनली जॉब्स जस्ट टू गेट मनी। आई और एग्री, वो करियर और गोल नहीं है। हाँ, वो मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट में आपको पता भी चल जाता है कि ही इज़ और शी इज़ ओनली डूइंग दिस फॉर मनी, और ही और शी हैज़ अ परमानेंट गोल टू डू दैट। ठीक है? बहुत मर्तबा ये होता है कि कंपनी के बारे में तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो, मुझे लगता है कि जो रिसर्च करते हैं। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप जिस टीम में काम कर रहे हो, उस टीम में कितने लोग होंगे? यस, बिल्कुल। आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसको लेके कंपनी का क्या थॉट प्रोसेस है? यस, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि व्हाट इट इज़ लुक्स लाइक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट्स योर हायरार्की लुक्स लाइक, हु इज़ द लाइनिंग मैनेजर, उनका काम क्या है, व्हाट्स योर डे टू डे लुक्स लाइक। मैंने ये चीज़ नोट की है, अब कैंडिडेट्स ये सवाल करते हैं कि आपका डे टू डे कै हमारा डे टू डे कैसा होगा अगर हम इस जॉब के लिए आएँगे। सो ये एक, अब जो भी हायरिंग मैनेजर है उनको तो बताना होता है कि अच्छा सही है, हम अगर एजाइल पे चल रहे हैं, सो वी डू दिस डेली स्क्रम्स, हर्डल्स होंगी आपकी, चेक-इन्स होंगे जस्ट टू मेक श्योर सो ये चीज़ें बहुत एंड दैट दीज़ थिंग्स मेक्स यू एक्साइटिंग एक्सेप्ट कंपनसेशन इज़ समथिंग, वो आपको एक लेवल पे आके एक्साइटमेंट देता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। वरना आप एक जगह पे आते हो, आपको वो चीज़ एक्साइटमेंट फ़ील नहीं होती। ये कंपनी का कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरी नज़र में ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। बट फिर आप जब ये जी, बट व्हाट गो आई अहेड। पर्सनली बिलीव महा कि इट्स अ डिबेटेबल थिंग इन पाकिस्तान, ठीक है? द इकोनॉमिकल फैक्टर्स इन पाकिस्तान इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है? अगर मैं कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल 100 के पीकेआर पे काम कर रहा है, ठीक है? पीपल आर लाइक दैट, जो कहते हैं भाई हमें 90,000 में जॉब दे दो, लेकिन काम तरीके का होना चाहिए। पीपल रियली वांट कि समटाइम्स पीपल वांट गुड कंपनी, समटाइम पीपल वांट मनी। हुँ, एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ठीक है, वो दोनों सिचुएशन में बीइंग एज़ अ एम्प्लॉयी, जहाँ पे एम्प्लॉयर को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका जो पास्ट है, वो आपकी करंट सिचुएशन पे नहीं आना चाहिए। आप किसी को ये ना बोलें, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड मसले की वजह से जॉब स्विच करते हैं और पुरानी जॉब के बारे में लिख देते हैं कि भई हमारा मैनेजर ऐसा है, हमारा मैनेजर वैसा है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आपको कोई नई जॉब के लिए हायर करेगा, तो वो ज़रूर ये देखेगा आपका कि यार आप क्या आउटस्पोकन हो, आप कितना बोलते हो, क्योंकि अगर आप पुरानी कंपनी के लिए बोल सकते हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर आप जब नई कंपनी से जाएँगे तो आप उनके लिए भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। So what I personally believe कि it's not only about discussing the job, it's also discussing कि यार आप अल्टीमेट गोल क्या देखेंगे। मतलब अगर आप 1 साल बाद किसी से पूछते हैं, तो आप उनसे ये बोलेंगे ठीक है, आपने तो कहा था 1 साल में मैं इतना ग्रो करूँगा। तब आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से एचआर भी आपको बैकअप कर सकता है, आपका टीम लीड आपको बैकअप कर सकता है, आपका मैनेजर आप बैकअप कर सकता है। ठीक है, वो अच्छे हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से तो प्लस पॉइंट रखें। अ, मूविंग फॉरवर्ड इज़ वन ऑफ द वेरी बिग थिंग, आई पर्सनली बिलीव के 90% कंपनीज़ या 95% कंपनीज़ पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं करती होंगी, दैट इज़ रिजेक्शन ईमेल, ठीक है? सेकंडली इज़ टू हैंडल रिजेक्शन, ठीक है? अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी सी इज़ कि हमें रिजेक्शन ईमेल आती है और हम शायद उसकी हेडिंग पढ़ के उस ईमेल को खोलते भी नहीं है। हुँ, There are friends, there are people who are working with me, and I was like, yeah, they're from different states. They're from Singapore, they are from Europe, they are from US, Canada, and they were like, yeah, rejection email is very important, where you need to see and where you need to reply कि यार अगर मैं रिजेक्ट हुआ हूँ तो आपको पता तो चले कि आप किन चीज़ों पर रिजेक्ट हुए हैं। हुँ, आई गॉट इट। अच्छा, रिजेक्शन देखिए, एक बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है कि रिजेक्शन ईमेल एक होती है ऑटो, आपको मतलब एचआर पूरी कोशिश करता है कि वो एक जगह से ट्राई, अगर आपको रिजेक्शन ईमेल नहीं आई होती है तो देयर मस्ट बी सम इंटरनल रीजंस। ऐसा भी हुआ है कि एक बैच क्लोज हो जाता है, दूसरे बैच, सो डे टू डे कम्युनिकेशन मेरी नज़र में फॉलोअप्स करने चाहिए, उससे बहुत ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बट जब आप व्हाट शुड बी द राइट टाइम ज़ोन ऑफ अ फ़ॉलो-अप? पाकिस्तान का फ़ॉलो-अप तो अलग है ना, वो तो सुबह ईमेल कर करते हैं और शाम में पूछते हैं कि स आपकी जॉब नहीं लगी हमारी।
वैसे तो देखिए इंटरव्यू में आपको बता दिया जाता है व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू। अगर नहीं उस टाइम फ्रेम में आपको कोई एचआर या तो आप एक ईमेल करो या उनका नंबर, अगर वो आपको नंबर पे स्क्रीन मैसेज ड्रॉप कर दो कि हे आई एम रीचिंग आउट फॉर दिस रोल, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप्स एंड ऑल। क्योंकि आई नो सामने वाला बंदा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है, हम भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो देयर मस्ट बी प्रोफेशनलिज्म में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सो ये वाली चीज़ जो है ना रिजेक्शन वाली, मैं यही बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है आप रिजेक्ट हमेशा अपने स्किल्स के बेसिस पे हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट्स या एक किसी भी चीज़ में आपसे बेटर उसमें, बट दैट डज़न्ट मेक यू फेलियर, राइट? सो रिजेक्शन फेसिंग मैं वैसे मैं एक बात बताती हूँ किस तरह से मैं ये सजेस्ट करती हूँ, ऑलवेज़ आस्क फॉर अ फीडबैक। ठीक है, वैसे तो फीडबैक में ये चीज़ लिखी होती है कि अगर कोई ईमेल आ रही है कि ये रीज़न था, वी रिजेक्टेड यू एंड ऑल, या हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं आपके साथ प्रोफेशनल वे में। बिकॉज़ लोग बहुत नेगेटिव उससे लेते हैं, मतलब रिजेक्ट कर दिया कंपनी बेकार है। ये पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को हो जाता है। हाँ, इट्स अ वेरी हमारे यहाँ बड़ा बाइनरी तरीके से चलते हैं ना लोग, या तो 1 है या तो 0 है। अगर आपने रिप्लाई नहीं करा कंपनी बेकार है, और अगर कंपनी ने अप्लाई करा लिया भाई कंपनी बहुत अच्छा है। हमारी यहाँ पाकिस्तान जी, मेंटालिटी इज़ दस। यस। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव, बहुत मर्तबा तो ऐसा भी होता है कि यार अगर कोई आपको हायर नहीं कर रहा, यार वो एचआर ने अपना बंदा हायर कर लिया होगा। एंड आई वाज़ लाइक ज़रूरी नहीं है भाई। हाँ, मैं तो बोलती हूँ अपने बंदे कोई नहीं मेरी नज़र, क्योंकि आजकल को लाइक रेफरल्स रेफरल्स हेल्प्स बट नॉट इन एवरी केसेस, ऐसा नहीं होता। रेफरल्स फेवरेटिज्म डू। आई एम नॉट। आई पर्सनली अप्रिशिएट कि ठीक है अगर आप रेफरल पे हायर कर रहे हैं, क्योंकि एक एचआर की अपनी केपीआई है और उसको जवाब देना है। अगर उसको लगता है कि कोई भी एक्सवाईज़ी बंदा है जिसने मुझे रेफर करा है और वो उसको वाउच कर सकता है, तो व्हाई नॉट, उसको वो प्लस पॉइंट देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना पूरी कंपनी में वो अपना खानदान तो हायर नहीं कर सकता, तो उसको कभी ना कभी तो बाहर। जी, सो सॉरी। लाइक यू। परफेक्ट। सो ये इस किस तरह से फेस करना है ये वाले सवाल को मैं ये बोलूँगी कि डोंट टेक इट एज़ अ नेगेटिव, क्योंकि ऑलवेज़ आस्क फॉर अ फीडबैक। फीडबैक से आपको आइडिया हो जाता है, और कभी-कभी कुछ चीज़ें आपको इंटरव्यू दे के आइडिया होता है कि यू आर लैकिंग इन दीज़ थिंग्स। हुँ, सो टेक इट एज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। एंड क्योंकि हर कंपनी का कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयी देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होता है, वो अपने कल्चर के हिसाब से देख रही होती है। अगर एक जगह आप हुँ, फिट इन नहीं हो, इट डज़न्ट मीन कि आप कहीं और भी फिट इन नहीं होगे। ठीक है। Especially in corporate and startup. The corporate is very different thing and startup is very different thing. सो मुझे ऐसा लगता है हमारी जने कुछ लोगों को ऐसा वो स्टार्टअप में काम करते हैं, उनको नहीं समझ आता, दे एंडेड अप इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। दे लाइक्ड इट कि हाँ भाई हमें कॉर्पोरेट में एन्जॉय करें, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, हमारी ग्रोथ बेशक स्लो हो जाए बट पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं तो वी आर फाइन विद दैट। कुछ लोगों को मल्टीपल हैट्स पहनने के शौक होते हैं, वो चाहता है हम स्टार्टअप में आए, हम ये भी सीखें, ये भी कर लेंगे, हम एक ग्रोथ होती है, राइट? सो ये वाली चीज़ें जो है ना डिपेंड्स ऑन आई वुड से कि ये रिजेक्शन को एक नेगेटिव उसमें लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज़ आस्क फॉर फीडबैक, कि आप प्लीज़ हमें फीडबैक, एंड ऑलवेज़ आस्क फॉर लाइक एट द एंड एनी एनी और कभी-कभी हम मोस्टली जो ईमेल्स लाइक हमारे इंटरव्यूज़ एंड होते हैं ना, हम उसमें आइडिया अगर होता है कि हाँ, ये नहीं फिट इन होगा तो हम उसमें बता देते हैं। कि like you we will see but right now we will make a decision but you are not a good fit right now। इस तरह से हमारी ये एक ऐसा का इंटरनल वो होता है जो उनको प्रोसीजर बनाना होता है, राइट? बट अगर मैं ये बोलती फॉलोअप्स लें ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और इंटरनल कंपनीज इश्यूज भी होते हैं तो उसको आप अपने ऊपर दिल पे नहीं लेके बैठ जाएंगे, मुझे तो हायर नहीं किया तो क्या पता उन्होंने होल्ड कर दिया पोजीशन। ना मतलब सो अरे दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू डिस्कस ना, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई सी इज़ लोग एक रिजेक्शन को ना बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। या या बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने स्टार्टिंग करियर में ही ना एचआर दोस्त रखें, ताकि आपको रियलिटी पता चले कि वो किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। दिस इज़ द रियल थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, क्योंकि अम, देयर आर पीपल हू आर सेइंग कि यार हमें तो नौकरी नहीं लग रही, और उसके अलावा देयर आर पीपल जिनको जो जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ नौकरी लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ एम्प्लॉयी साइड पे मसला नहीं है, वी नीड टू सी द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव एज़ वेल। ठीक है? अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये होती है कि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक कि अ, वी आर गुड फिट फॉर एवरीथिंग। जैसा भी आपने हम्म बोला कि मैं कहीं पे भी अप्लाई करूँगा तो सही होगा। हो सकता है कि आप किसी एक जॉनरा में किसी एक कंपनी के अंदर अच्छे हों, सही है। जैसा भी आपने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है भाई हम एमएनसी में ठीक है।
हुँ। नॉट एवरी पर्सन जो कि एमएनसी में काम कर रहा है वो स्टार्टअप में चलेगा, इस वजह से शायद वो सिलेक्ट ना हो। इसी तरीके से जो स्टार्टअप में वो शायद एमएनसी में चले इसी तरीके से ना हो, क्योंकि हर कंपनी का ग्रोथ प्लान अलग है और एग्जीक्यूशन बहुत अलग है। इट्स नॉट लाइक कि एक एचआर आपको हायर करता है, अब वो जब आपको हायर कर लेता है उसने आगे मैनेजमेंट को बताना होता है कि मैंने इसको हायर क्यों करा है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसने किसी बुनियाद पे आपको हायर कर लिया और 3 महीने बाद आपने कहा कि भाई मुझे तो जाना है वापस, तो वो एक एचआर से पूछेंगे कि इसको हायर ही क्यों करा था, इतना टाइम लगा था। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप किसी बंदे को हायर कर लेंगे तो कल से आ जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम भी 2 ढाई महीने तो लगेंगे, क्योंकि वो अपना 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करेगा। फिर वो अगर आएगा तो फिर उसकी सारी मैनेज करना है कि उसके अकाउंट्स बन रहे हैं, सारी ट्रांज़िशन में चीज़ें बन टाइम लगता है। मतलब इट्स अ वेरी मतलब ट्रांज़िशन गेटिंग एन ऑफर लेटर, गेटिंग टू योर डेस्क इज़ अ 1 एंड अ हाफ मंथ ऑफ अ प्रोसेस। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मरतबा तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होता है और वो 1 दिन पहले बोलता है कि ठीक है, हमें कहीं और से जॉब मिल गई और हम वहाँ जा रहे हैं। एंड द एचआर वाज़ लाइक यार 1.5 महीना मेरा ज़ाया हुआ। ठीक है। there is a lot of cases जो मैं अगर आपको बताऊँ तो यू विल वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि इस तरह के भी लोग होते हैं, 1-1 मंथ के नोटिस पीरियड सर्व करके बिफोर द डे ऑफ जॉइनिंग दे डू लाइक मिसयूज ऑफ ऑफर लेटर्स एंड Really, ऑल। I इट I have हैपेंस। I have heard that people are doing that कि they are just apply just to get a counter offer. They apply, okay fine, and they go to their company and I was like कि भाई हमें इतने की ऑफर आई, इतने दे रहे हो, एंड ऑब्वियसली जो कंपनी होती है वो कहती है ठीक है भाई हम इतने दे देते हैं, वो रुक जाता है। आई हैव सीन पीपल जो कि एज अ एचआर पर्सन मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय करता है, टेक इट एज अ रेड फ्लैग, ट्रस्ट ट्रस्ट मी। मैं वहीं पे क्योंकि एक तब वही कि देखिए ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। वहाँ फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आप एक बंदे के एक्सपीरियंस के साथ उसकी मेच्योरिटी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे का 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे बात जैसे करेगा और आप उससे चीज़ें जैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो बहुत अलग होंगी। अब किसी को अभी इंडस्ट्री के अंदर हुए ही साल है, तो आप अपने पास वो वैसे ही बफर पीरियड रखेंगे। ये हो सकता है कि भाई 1 आध महीने में मुझे कोई ऐसी चीज़ करे, तो आप उसके लिए बैकअप भी रखेंगे भाई ठीक है। क्योंकि इट्स मोर लाइकली मैनेजिंग इन एन एचआर इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी को फेवरिज़्म करते हैं, सही है, आप किसी को फेवरिज़्म करें, आप वो कंपनी में आ जाए और उसको बाद में ना समझ में आए, तो आपको ब्लेम करेगा। आप किसी को ना रखें, तो भी आपको ब्लेम करेगा। क्योंकि 99% तो ना उसने सीईओज़ को देखना है, ना उसने मैनेजमेंट को देखना है, ना उसने कौन है उसका हायरिंग मैनेजर होगा उसको देखना है, उसको सिर्फ़ हायरिंग एचआर को ही देखना है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस महा इज़ हुँ, एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? मतलब ठीक है, आपने तो लोगों को हायर कर लिया, आप भी तो हायर होते होंगे। मतलब आपने अपने आप को भी हम भी तो एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी बनता है, ठीक है? हुँ, व्हाट शुड बी द राइट ट्रैक पाथवे ऑफ एन एचआर, ठीक है? आई एम सीइंग ऑलमोस्ट एवरी एचआर इज़ नाउ एचआर बीपी। मुझे तो बहुत टाइम बाद पता चला कि यार एचआर बीपी करता क्या है ना, एंड आई वाज़ लाइक रियलाइज़ दैट, ठीक है? बट एक एचआर की अगर मैं एक एचआर की फील्ड में बात करूँ, ठीक है? अगर एक बंदा एचआर अभी बना है, ठीक है? व्हाट शुड बी द राइट टाइम फ्रेम कि उसको निकल जाना चाहिए एक जगह से, ठीक है? आपको क्या लगता है कि ग्रोथ किस तरीके से होनी चाहिए? आप जब क्योंकि जब आप लोगों को हायर कर रहे होते हैं तो आपको मेंटालिटी तो पता है कि यार वो आगे वाला बंदा मुझसे क्या पूछेगा। तो अगर महा के ठीक है। तरीके से मैं पूछूँ कि महा अगली जब जॉब पे जाती हैं या कहीं किसी और अपॉर्च्युनिटी को देख रही होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें देखती हैं, जिसके बाद वो फैसला करती हैं कि ठीक है यार मैं यहाँ पे जाऊँगी। ओके, आई गॉट इट। सो आई टोटली एग्री, जैसे जैसे हम दूसरों को हायर करते हैं वैसे ही हम भी एक एम्प्लॉय होते हैं और इवन एचआर की पोजीशंस भी खुलती हैं, राइट? सो उनको किस तरीके से एक करियर पाथ क्या होता है? For the growth perspective, I would suggest everyone to be like like tools. Start using tools. Make your work easy. Start using AI tools that make your time saving and easy. वो आपको थोड़ा स्मार्ट बनाता है, राइट? दैट एड्स अ वैल्यू व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। एक बंदा एक जगह रुका हुआ है, वो मतलब मैनुअल हर चीज़ को होती है, अब टूल्स आ गए हैं तो उनको एक्सप्लोर करें। देखिए,
if you're expert of using multiple tools, payroll staff, recruitment staff and all, so you know what to do, right? हर कंपनी अपना टूल यूज करे, अगर आपको पहले से भी थोड़ा सा आइडिया भी होगा how it works, so that will add a value. और मे बी यू कैन ब्रिंग दैट टूल इन टू दैट कंपनी कि प्लीज़ मैंने यहाँ यूज़ किया था, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड ऑल. मुझे नहीं पता व्हाट्स द कंपनी लुक्स लाइक, बट माई कंपनी ऑलवेज ओपन टू टेक दैट आइडिया. सो मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प करी कि कोई प्लेटफॉर्म मैंने देखा, मैंने उसकी प्रपोजल देखा, उसकी कॉल ली, उसकी वीडियोस देखी, किस तरह से वो काम करता है, आई थिंक मुझे लगा कि ये यूज़फुल है. सो आई वुड लाइक शेयर दैट आइडिया, हे माई कि मुझे ये चीज़ें समझ आ रही है, दैट विल सेव आवर टाइम एंड ऑल, राइट? सो कोर्सेज, जस्ट 10 कोर्सेज करने से you're not become an expert. ठीक है, इट द वर्क यू डू इज मेक्स यू एक्सपर्ट, राइट? सो ये वाली चीज़ें इतनी मैटर नहीं रखती. आई वुड सजेस्ट कि टूल्स बहुत मैटर रखते हैं. द वे यू डू योर वर्क, बी ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखें, रिकॉर्ड रखें, अपने एक एक अपना वे बनाएं कि दिस इज़ हाउ आई वर्क. उसको फ्लेक्सिबल कर लें कंपनी की प्रोसेसेस के हिसाब से. अदरवाइज आप अपना एक काम का तरीका रखें, मैनेज. मल्टीटास्किंग मैनेज करना अगर किसी को आता है, आई थिंक सो दे आर सक्सेसफुल, बिकॉज इट्स नॉट कि वो आपको ओवरलोड करेगा. मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल हेल्प यू टू बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड. अच्छा, सेकंड आपने ये चीज़ मेंशन की कि लाइक व्हेन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब्स, राइट? सो उसको थोड़ा-सा मुझे दोबारा रिपीट करेगा? अगर आपने अप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप आपको तो सारे टिप्स पता है ना कि ये करना है, ठीक है? और अब आपने वो सारे टिप्स अप्लाई कर दिए, ठीक है? बीइंग एज़ एन एचआर, ठीक है? अर्ली स्टेजेस में जब आप एचआर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सही है? तो आपको कोई बंदा हायर कर रहा है, ये देखने के लिए कि आपने उस कंपनी के लिए चीज़ें हायर करनी है, ठीक है? तो आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर आपके एक्सपीरियंस के बाद तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, जहाँ पे वो इंटरव्यू नहीं होगा, वो एक तरीके का कम्युनिकेशन होता होगा कि ठीक है, हम ये वाला बंदे में ये चीज़ें सोच रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मली अभी ग्रेजुएट हुआ है, जिसने अभी बैचलर्स इन एचआर करा है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? वो अपने आप को किस तरीके से अपस्केल करके दिखाए कि भाई मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। इंटरव्यू में किस तरीके से, या कोई कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक एचआर के हिसाब से क्या होने चाहिए? ठीक है, आई वुड सजेस्ट फर्स्ट टू सी कि व्हाट इट लुक्स लाइक. जैसे मैंने आपको बताया कि एचआर के अंदर से एक लोगों को ये लगता है एचआर इज जस्ट डू हायरिंग. नहीं, इट्स वे मोर देन दैट. हुँ। आप यू आर मैनेजिंग ह्यूमन, दैट्स नॉट इजी इसका मैनेज करना. उसका एक प्रोसेस होता है, परफॉर्मेंस, ओकेआरस, कंप्लायंसेस देखना, लीगलिटी तौर पे हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इट्स जस्ट नॉट अबाउट हायरिंग, राइट? जस्ट इंटरव्यू लेके ऑफर लेटर साइन कराना नहीं होता. एक बंदे को आप लेके आ रहे होते हो, सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट देयर होल प्रोसेस, क्योंकि एक टाइम इन्वेस्ट होता है उसको प्रोबेशन तक क्या प्रोसेस रहेगा, एंड देन डिसीजन मेकिंग एवरीथिंग. सो एक way more than that HR. If someone decided to end up in HR, first see कि what's their interest are. If they like talent acquisition, तो उनको बोलना बहुत पड़ेगा. They must be a talkative person, क्योंकि उनको लोगों से बात करनी है. उनको अपने जजमेंटल स्किल्स पे काम करना है, नॉट जस्ट जजिंग ऑन अ बेसिस ऑफ अपीयरेंस. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक बंदा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस पोजीशन के लिए किस तरह फिट इन होगा. दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस फॉर अ रिक्रूटर. ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू माय करियर, सो व्हाट आई थिंक सो ग्रोथ दोनों साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एंड लाइक आपके करियर गोल्स पे. सो आई आई कैन टेक एन एग्जांपल. व्हेन आई स्टार्टेड, सो मुझसे जब मेरे लाइक राइट वी हैव अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ओकेआरस ऑन एनुअल बेसिस, राइट? हुँ। वो आपके पर्सनल गोल्स बेस्ड ऑन प्रोफेशनल होते हैं, जो आपको ग्रो करने होते हैं कंपनी कंपैरिजन पे. तो जब वो मैंने बनाए ना, सो एट फर्स्ट ट्रस्ट मी, माय बॉस वर्ड्स लाइक मैं कंफ्यूज थी. दे वर लाइक, इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन एनीथिंग, दैट मींस दैट इज नॉट योर गोल. First, sit and see where do you want to see yourself. Then that makes a huge difference. और उसके बाद मैंने अपने goals में जैसे मैंने लिखा कि I wanted to invest my time into international market, US payrolls, international hiring and all these stuffs. And I ended up doing that, right? I'm still in the process of learning. I'm not an expert, to be honest. आप expert नहीं बनते साल लगाने के बाद भी, क्योंकि daily basis पे आप कुछ ना कुछ सीख. I do make a lot of mistakes, trust me. But आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक्स एंड गो फॉरवर्ड कि हाँ ठीक है, मैं इसको इस तरह नहीं, इस तरह इम्प्लीमेंट. अब आपके पास हेल्प्स आ गई हैं, चैट जीपीटी, ये वो, दैट मेक्स यू मोर स्मार्ट. वो आपको, अगर आप किसी से बोलते हो ना मैं चैट जीपीटी या एआई यूज करता हूँ, आपको ये नहीं कहेगा कि ये बंदा किसी काम करे. नहीं, एवरीथिंग नीड्स अ ह्यूमन टच. वो आपका एक काम करने का तरीका आपको आगे बढ़ाएगा. सो दैट दैट विल हेल्प यू इन एचआर फर्स्ट सी के क्या है ये फील्ड, हाउ इट वर्क्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का एचआर बिल्कुल अलग है,
एफएमसीजीज़ का बिल्कुल अलग है। I do have one friend who works in HR field in corporate, and I kind of an ecosystem in startup. Not like startup scale up पे अब है, but in just way. सो उन वो और मैं जब भी डिस्कशन करते ना, तो अलग एचआर की डिस्कशन होती है, एंड वी ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर। वी लाइक ये हमारी बड़ी मजे की कम्युनिकेशन होती है। लाइक उनका हायरिंग प्रोसेस बिल्कुल अलग है, हमारा हायरिंग प्रोसेस बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रोसेसेस हर कंपनी के अलग होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में चल क्या रहा है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, एंड देन ट्राई इट आउट। कभी कभी करियर शिफ्ट भी होते हैं लोगों के, वो जैसे क्यूए से टेक्निकल पीएम में चले जाते हैं, कि मार्केटिंग से सेल्स में घुस जाते हैं, इस तरह से भी होता है। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आई थिंक सो, दैट्स ओके। इफ यू कि आपको ऐसा लगता है कि आपके हार्ड स्किल्स से सॉफ्ट स्किल्स कोई चीज़ करियर फेयर कर रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, मे बी यू एंडेड अप एज अ पीएम, राइट? कि आपको लोगों को मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर चीज़ में इन्वॉल्व रहना पसंद है एंड ऑल। सो एचआर का एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है, दे नो कि सब करते क्या है, राइट? हर फील्ड में। Good enough, good enough. I think we have discussed very good pointers, Maha. We have discussed the other side of the conversation as well कि employer को क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है और वो क्या-क्या चीज़ें देख रहा होता है. And I think that helped a lot of people to understand it's not about just clicking on one button. It's not just apply. It's just not like emailing your CV. It's also to understand कि it's a big commitment. Or if anyone is hiring and anyone is applying, it's more likely आप अगर 10-15 मिनट लगाते हैं, तो आप अपने लिए भी आसानी कर रहे होते हैं और जो सामने बंदा आपको हायर कर रहा होता है, उसके लिए भी आसानी होती है। So, I'm happy that you take out your time for this call, and thank you so much, Maha. Thank you so much for this session. Yeah, likewise. I'm pretty much sure कि a lot of people will learn from it. Just for the audience, Perfect. if you want to reach out to Maha, you can reach out on their LinkedIn. राइट अ प्रॉपर मैसेज हाय हेलो के अलावा अगर आप कोई मैसेज करेंगे आई एम प्रीटी मच श्योर कि योर मैसेज वोंट बी सीन बट अगर आप प्रॉपर मैसेज करेंगे आई एम प्रीटी मच श्योर महा विल आल्सो लव टू हेल्प यू गाइस सो थैंक यू सो मच महा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इट्स माय प्लेजर टू Thank हैव you, यू Mara, for your time. It was great talking to you, and I'm glad we did that. Thank you.